Good morning, everyone. Good afternoon, everyone. Good evening, everyone. Good evening. Good evening. We'll wait for a minute and then we'll resume our class. थोड़ी देर के लिए हम लोग रुक जाते हैं, फिर क्लास को रिज्यूम करेंगे. ओके. ज्यादा इंपॉर्टेंट यही रहेगा हम लोग के लिए. You will wait for a minute and then we'll resume our class. Okay. No, see. I welcome you all to an academic platform. This is very pathetic. अभी क्लास चालू नहीं हुआ. Somebody has disliked it. अभी मैंने क्लास चालू ही नहीं किया and you people, really this is great. Good morning to everyone. Good evening to everyone. So this is a very short durations of this class. This is a very short duration of this class. So what we will do, this is pathetic कि अभी मैंने क्लास चालू भी नहीं किया है and you see means somebody has disliked it. यही तो इशू है ना इंडिया में. Okay, so good evening, good evening, good evening, Rashmi Dubey. So now, before starting our topic, चालू करने से पहले, let me start with the rituals. So I welcome you all to an academic platform. मैं सभी का an academic platform पे स्वागत करता हूँ. And you see, crack all UPSC civil service optionals with India's largest learning platform. Okay, crack all. Okay, so India largest learning platform, and it's as you all know that Unacademy is now has become one of the India largest learning platform. And see, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो देखिए आपको क्या मिलेगा. डेली लाइव क्लासेस में एजुकेटर से चैट करेंगे, डिस्कस करेंगे, डाउट क्लास पूछेंगे एंड मेनी मोर थिंग्स. Structural courses, आप देखिए there are more than 15,000 plus structural courses. Live test and quiz are there only and only to evaluate the performance of learner. You see daily live classes, अगर recorded lectures की बात करते हैं, अगर हम इस daily live classes की बात करते हैं, if you are not getting daily live classes, you will be getting recorded lectures. Okay, then you see along with me there are top 100 educators जो आपको educate करेंगे and you can see these slides. Then about me, मेरे बारे में, I have completed the graduations from Calcutta University in science subject. I am acting as a mentor for UPSC civil service for last 11 years and so in public administration, polity and governance in different state, and have appeared for UPSC civil service interview twice and have some many reputed as coaching institution at Delhi and many more state under my guidance. Many aspirant have cracked UPSC civil service as well as many state level exams too. देखिए अनअकैडमी ने टोटल 15,000 प्लस कोर्सेज अवेलेबल कराए हैं यूपीएससी सिविल सर्विस के लिए, एंड यू कैन सी दी कोर्सेज आल्सो in this slide. Then you see
अगर आप देखें तो ऑप्शनल कोर्सेज की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शनल कोर्सेज यूपीएससी ऑप्शनल कोर्सेज फॉर 1 मंथ से लेकर 36 मंथ तक यू कैन सी द फीस स्ट्रक्चर। और इस फीस स्ट्रक्चर में इफ यू वांट टू डिस्काउंट यू यूज माय रेफरल कोड दैट इज MDYT। आप मेरा रेफरल कोड अप्लाई करेंगे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। यू कैन सी दैट। गुड इवनिंग सजल। नाउ सी अनअकैडमी कॉम्बैट कोर्सेज की बात करते हैं तो यू सी अनअकैडमी अगेन इफ यू वांट टू एनरोल इट यू कैन यूज माय रेफरल कोड MDYT और फ्री ऑफ कॉस्ट आप एनरोल करा सकते हैं। ओके और ये एग्जाम देखिए 14th एंड 28th फेब को होगा। नाउ यू सी टॉप 3 रैंकर्स, यू सी टॉप 3 रैंकर्स विल गेट फुल सब्सक्रिप्शन 6 मंथ्स 12 मंथ्स और 24 मंथ्स के लिए। टॉप 3 को अगर एग्जाम्स क्रैक करते हैं तो उनको सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। Top 10 rankers, 4 to 10 rankers, 75% they have to pay the amount, any subscriptions. And 11 to 50, you see, if you want to say that is 50% of the subscriptions you'll be getting free. And 51 to 500, you'll be getting 25% of these subscriptions. So now you see there is 1 year's batch, 2 years batch, and you see this is NCRT batch. किसी भी कोर्स में अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो you need to apply my referral code MDYT। अगर आप मेरा रेफरल कोड MDYT अप्लाई करेंगे एनी कोर्स यू विल बी गेटिंग 10% डिस्काउंट। नाउ यू सी अनअकैडमी हैज लॉन्च कॉम्बैट कोर्सेज। कॉम्बैट कोर्सेज में जिसमें आप देखिए कॉम्बो पैक है, इसमें आप देखिए ऑप्शनल और जीएस दोनों मिला के आप एक साथ ले सकते हैं 12 मंथ्स 24 मंथ 36 मंथ एंड यू कैन सी द फीस स्ट्रक्चर। सिमिलरली प्लस कोर्स और ऑप्शनल कोर्सेज के लिए 12 मंथ्स 24 मंथ 36 मंथ के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं एंड यू कैन सी द फीस स्ट्रक्चर। बट इफ यू अप्लाई माई रेफरल कोड दैट इज MDYT you will get 10% discount. Then you see this is special class। अभी मेरी स्पेशल क्लास 5 बजे से चलेगी दैट इज पॉलिटी पे एंड इट इज रिलेटेड टू MCQ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। आपका नेट नहीं चल रहा है कि मेरा नेट सही नहीं चल रहा है? ओके देन यू सी हम जब दिस इज माय टेलीग्राम आईडी @unacademy_mkd and MDYT is my referral code। MDYT is my referral code। और आपको किसी भी फील्ड में इफ यू वांट डिस्काउंट यू कैन यूज माय रेफरल कोड MDYT, you will get 10% discount। You will get 10% discount। Okay, now see अनअकैडमी कॉम्बैट कोर्सेज की बात करते हैं। दिस इज द मोस्ट गेमिफिकेशंस। अभी जस्ट मैंने बात किया दिस इज माय रेफरल कोड इफ यू अप्लाई यू विल गेट 10% डिस्काउंट। अब देखिए लेट्स क्रैक इट, एक समिट होने वाला है दैट इज ट्रांसफॉर्मेशंस योर सिविल सर्विस प्रिपरेशंस and this summit is 20 and which is going to start on 20 and 21 February। रजिस्टर नाउ, अगर आपको रजिस्टर करना है तो आप मेरे रेफरल कोड MDYT से रजिस्टर कर सकते हैं। दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। गुड मॉर्निंग सुनिष्का, गुड इवनिंग सुनिष्का। देन यू सी इसमें कौन कौन होगा, यू कैन सी दिस पी चिदम्बरम, कपिल सिब्बल, कैलाश, दुर्गा शक्ति, नागपाल, अशोक खेमका। सो यू कैन सी दी पर्सनालिटी, आप पर्सनालिटीज के नाम देख सकते हैं यहाँ पे। ओके देन यू सी नाउ after looking this personality, now today our topic is Basu। Good evening Basu, from which state you belongs to? now see अब जो हमारा टॉपिक है, our topic is how to become IAS। how to become IAS। अर्शदीप शर्मा गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू एवरीवन। सबसे बड़ा क्वेश्चन है, दिस इज द बिग क्वेश्चन कि हमें IAS so you are from Punjab, very good। so you see
अब ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि हम आईएएस कैसे बने। क्यों? क्योंकि आप लोग क्या है कि रोज एवरीडे आप लोग ख्वाब देखते होगे कि आईएएस का स्टेटस क्या है, उसका प्रेस्टीज क्या है, उसको कितनी सैलरी मिलती होगी, वो एक एलिट क्लास में आता है, बड़े क्लास में आता है तो कैसे आता है। ओके ओके, कोई बात नहीं, आप मेरे 5 बजे वाले अनअकैडमी क्लास में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वेरी गुड सजल, यू आर ऑल्सो फ्रॉम पंजाब, दैट्स ग्रेट। तो आप वहां ज्वाइन कर सकते हैं, देयर इज नो इशू। 5 बजे से मेरी क्लास वहां पे चालू होगी, पॉलिटी की एमसीक्यू पे, आप लोग सभी ज्वाइन कर सकते हैं, सबका मोस्ट वेलकम है। तो अब देखिए, तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं। देखिए, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि हम आईएएस कैसे बने। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति के मन में एक ख्याल आता है और वो सपना देखता है कि हमें आईएएस बनना है। और कुछ लोगों के मन में तो ऐसा है, सपना ऐसा है कि हम पढ़ेंगे तो आईएएस बन जाएंगे। जो कि ये सारी चीजें जो है हमें कहीं ना कहीं राजकुमार पांडे, ओके, और राज झा, ओके, तो कुछ लोगों के मन में ये है कि सर हम पढ़ेंगे ना तो हम आईएएस बन जाएंगे। बट समस्या ये है कि पढ़ने से कोई आईएएस नहीं बनता। पढ़ाई हमने भी किया था, अगर आपको ऑनेस्टली बताएं तो हम भी दिल्ली गए थे पढ़ने के लिए, हम भी दिल्ली गए थे पढ़ने के लिए। और उस दौर के टाइम में हम भी कम से कम फर्स्ट अटेम्प्ट जब मेरे को देना था तो हम कम से कम 16-17 घंटे पढ़, नॉट 17, 15 to 16 आवर्स आई यूज्ड टू स्टडी। कोई काम था नहीं, पढ़ना था और सोना था। बट अल्टीमेटली रिजल्ट क्या हुआ? देखिए, हम आपके सामने आ गए कि हमने जो गलती किया है वो गलती हम नहीं चाहेंगे कि आप लोग भी करें। हम नहीं चाहेंगे कि वो गलती आप लोग भी करें। इसलिए मेरा जो एक्सपीरियंस है कि आईएएस कैसे बने वो मैं आपको शेयर करूंगा। और सही मायने में दिस इज वेरी ट्रू कि आप अगर उसको अवॉइड करेंगे तो निसंदेह आप अपनी कमियों को दूर कर सकते हैं। जो आपके, इफ यू थिंक दैट कि यस, इफ यू आर गोइंग टू थिंक इन दैट डायरेक्शन, ऑब्वियसली यू विल ट्राई टू रिमूव योर एरर। आप अपने एरर को दूर करेंगे। क्यों? क्योंकि पढ़ने से कोई आईएएस नहीं बनता, पढ़ते तो बहुत लोग हैं। देखो, आईआईटी, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, इनसे ज्यादा कोई पढ़ता होगा। बट आपको लगता है कि वो आईएएस का एग्जाम सबसे टफ एग्जाम क्यों माना जाता है? बिकॉज इट हैज मेनी स्ट्रैटेजी। इसकी अलग एक कहानी है। ओके हमारा सबसे बड़ा मिस्टेक, हमारा जो सबसे बड़ा मिस्टेक था, आई हैव चेंज माई ऑप्शनल सब्जेक्ट। मैंने अपना ऑप्शनल जो चेंज किया था वो मेरा पहले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और एंथ्रोपोलॉजी था, मैंने उसको चेंज करके पाली लिटरेचर ले लिया। दैट वाज सुसाइडल। अगर मैं उसी को 2-3 साल पढ़ता तो शायद मेरा कुछ हो गया होता। और मैं इंटरव्यू में गया था, आई हैव गिवन ट्वाइस इंटरव्यू, और पुरुषोत्तम अग्रवाल का बोर्ड था फर्स्ट बोर्ड में। तो देखिए, मेरे से क्वेश्चन पूछा गया कि आपने पाली लिटरेचर लिया है, इसका एडमिनिस्ट्रेशन में क्या रोल है? मैंने बताया कि सर पाली लिटरेचर इसलिए नहीं लिया कि मैं स्कोर करना चाहता हूं, पाली लिटरेचर सर मैंने इसलिए लिया कि मेरी सिस्टर डीयू में पढ़ती है एमए में, तो उसको देखकर मेरे को इंटरेस्ट आ गया और मैंने पाली लिटरेचर ले लिया। हालांकि ये और बात है कि मुझे मेरी सिस्टर से कोई मतलब नहीं था, वो कभी दिल्ली गई नहीं, मतलब तो है मगर दिल्ली नहीं गई थी, बट देखने कौन आता है। बट एनी हाउ, सो दैट वाज द इंसिडेंट। और मेरा जहां तक मानना है कि आईएएस निकालना इज सिंपल, बट पीसीएस निकालना इज टफ। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन निकालना इज रियली कॉम्प्लेक्स, इज लिटिल टफ, दिस इज टफ। क्यों? क्योंकि स्टेट पीसीएस दे हैव देयर ओन रेमिफिकेशन, उनका अपना एक दायरा है। और अगर हम मानते हैं आईएएस की, तो दे हैव अ यूनिक फील्ड। और आपको बता दें, नाउ यू सी फर्दर, आई एम टेलिंग यू दैट आईएएस बनने के लिए
हमको बहुत ब्रिलियंट होना है ये जरूरी नहीं है। आईएएस होने के लिए हमें कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है। वी हैव टू मेंटेन कंसिस्टेंसी, और कंसिस्टेंसी भी हमारे पास होनी चाहिए 6 से 8 घंटे की। यू सी लास्ट ईयर आप देखिए 2020 का रिजल्ट, 2019 का रिजल्ट 2020 में आया, ओके, बिकॉज ऑफ कोविड थोड़ा डिलेड हो गया। एंड देयर वर 3 ऑफ द स्टूडेंट जो टॉप 300 रैंक में थे, दे वर माय स्टूडेंट। और सबसे बड़ा चीज कि दे मेंटेन दी कंसिस्टेंसी, दे मेंटेन दी कंसिस्टेंसी। और कंसिस्टेंसी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिए हम लोग क्या करते हैं कि हमारे अब एज अ ह्यूमन बीइंग, हम और आप जो हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि सर हमारा पहले प्रीलिम निकलेगा, और सर हमारा पहले अगर प्रीलिम्स निकलता है तो प्रीलिम्स निकलने के बाद सर हम मेंस की तैयारी करेंगे। सब प्रीलिम निकलने के बाद हम मेंस की तैयारी करेंगे। ये एक सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। गुड इवनिंग मिस्टर, बहुत दिन बाद आ रहे हो, क्या बात है? ओके, तो अब देखिए, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, पहले प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं, फिर मेंस की तैयारी करते हैं। तो हम अपने एग्जाम के फर्स्ट लेवल में ही स्टेप जो है, स्ट्रैटेजी जो है, वो गलत अपना लिए। फर्स्ट, पहला ही स्ट्रैटेजी जो है, दैट इज रॉन्ग इन आवर लाइफ। हम अपने जीवन में यही स्ट्रैटेजी, क्यों? क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस कुछ नहीं होता। अगर आप मेंस की तैयारी करेंगे ना, यू इजीली विल पेनिट्रेट द एग्जाम। प्रीलिम उसी के अंदर आ जाता है, प्रीलिम कम्स अंडर इट। सबसे बड़ी बात है कि प्रीलिम्स ऑटोमेटिकली विल बी इनकलकेटेड। और इफ यू आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस द सिलेबस। आज मैं आपको यूपीएससी का, प्रीलिम्स का, मेंस का सिलेबस नहीं बताने वाला हूं। मैं ये भी नहीं बताऊंगा कि उसके अटेम्प्ट कितने हैं, उसके टेन्योर कितने हैं, उसमें कितना एज चाहिए, रिजर्वेशन कितना है। दिस ऑल आई एम नॉट गोइंग टू से। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। आज की क्लास में मैं बिल्कुल ये नहीं बता सकता। आज की क्लास में केवल आपको इतना ही बताया जाएगा, आज की क्लास में केवल इतना ही बताया जाएगा कि आपको आईएएस बनने के लिए सबसे सिंपल तरीका क्या है, जो आप अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली आपके, कहते हैं ना कि थिंग्स विल कम इनटू योर ओन वे। क्यों? क्योंकि आप देखिए कि जब भी आप प्रीलिम्स का एग्जाम देते हैं, whenever you give the prelims exams, okay, prelims के बाद you get only 2 to 3 months for mains exam, और it is not possible to crack all the things मेंस एग्जाम में। 2-3 महीने में अगर आप 20 घंटे भी दीजिएगा तो आपके लिए बहुत टफ होगा। You see, Mr. Kids, your friend is saying, क्या हाल है? Though he has written his name Lone Wolf, but actual name is Raj. है? Anyhow, तो अब देखिए, तो सबसे बड़ी बात है कि हम लोग ये पार्ट को मिसिंग कर देते हैं। We just, this part gets missing. Okay, and when this part gets missing ना, तो आप देखिए जब ये पार्ट मिसिंग हो जाता है, जब ये पार्ट मिसिंग हो जाता है, तो इस सिलसिले में इफ यू सी दैट मिसिंग क्या होता है, कैसे होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आईएएस एग्जाम को निकालने के लिए, इफ यू वांट टू पेनिट्रेट दिस आईएएस एग्जाम, isn't, if you want to penetrate the IAS exam,
तो इस एग्जाम को निकालने के लिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, सबसे पहली चीज होती है राइटिंग. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. हमारे साथ जितने भी बच्चे जुड़े हैं और जिन्होंने आईएएस का एग्जाम क्लियर किया है, जिन्होंने आईएएस का एग्जाम क्लियर किया है, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं कि वो जो एग्जाम क्लियर किए हैं आईएएस का ना, सबसे बड़ी चीज, जितने भी बच्चों से मैंने बात किया है उनका कहना है कि सर 3 आवर्स में आई फेल टू कंप्लीट ऑल द क्वेश्चंस. मैं सारे क्वेश्चंस कर नहीं सकता. और इस 3 आवर्स को कंप्लीट करने के लिए हमें राइटिंग करनी बहुत जरूरी है. सो दैट इज व्हाई इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल. सबके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम मेंस की तैयारी करें और हम मेंस की तैयारी करें. और आप देखिए मेंस की तैयारी में राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है. देखिए सबसे पहले तो आपके दिमाग में यह चलना चाहिए कि 7.5 मिनट में यू मस्ट कंप्लीट 1 क्वेश्चन. मस्ट कंप्लीट 1 क्वेश्चन. आपके दिमाग में यह चलना चाहिए कि 7.5 मिनट में हमको एक क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना है. और जब आपके दिमाग में ये चलेगा कि हमारे 7.5 मिनट में ये क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेना है, तो आप देखिए आप एग्जाम पेनिट्रेट कर लो. क्यों? क्योंकि मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं मेंस देते हैं, उनका जीएस का या ऑप्शनल का वो पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं. ऑल पेपर दे फेल टू अटेम्प्ट. और इस ऑल पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए आपको राइटिंग बहुत जरूरी है. इतना लिखिए कि पेन टूट जाए फिर भी आप न टूटे कि हाँ हमें अभी करना है. एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम सभी के जिंदगी के लिए. आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि राइटिंग मेक्स अ मैन और वुमन परफेक्ट. तो मेरा मेन कॉन्सेप्ट यही है आज के एग्जाम में आपको बताना कि आईएएस आप कैसे बनेंगे. तो सबसे ज्यादा हम मेंस की तैयारी करेंगे और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे. इतना प्रैक्टिस करेंगे कि हम ये सोच ले कि जो भी क्वेश्चन 20 क्वेश्चन मेंस में पूछे जाते हैं हम सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर ले. क्यों? क्योंकि उसके अंदर 2-4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हमें नहीं आएगा, फिर भी हमारे पास इतना टाइम रहे कि हम कुछ भी लिखे, एटलीस्ट 1 नंबर तो मिले हमको. दैट विल ऑल्सो गिव यू मोर मार्क्स. फिर भी वो भी आपको पेनिट्रेट करवा देगा. तो सबसे बड़ी कॉन्सेप्ट अगर किसी भी एग्जाम को निकालना है, आईएएस हो पीसीएस हो, आपके लिए राइटिंग बहुत जरूरी है. और राइटिंग के लिए कंसिस्टेंसी मेंटेन करना ये आपकी जिम्मेदारी है. और राइटिंग भी 6 to 8 आवर्स. हमें लगता है कि 6 to 8 आवर्स. और मेंस की तैयारी करें, प्रीलिम्स की तैयारी बिल्कुल ना करें. जब आप मेंस की तैयारी करेंगे प्रीलिम्स ऑटोमेटिकली आप कवर अप कर लेंगे. प्रीलिम्स ऑटोमेटिकली आप कवर अप कर लेंगे और कोई नहीं रोकेगा आपको. Nobody will stop you. Okay? Because of some technical issues, हमारा लाइव क्लास नहीं आ पा रहा, तो हम आपको ये प्रीमियम क्लास दे रहे हैं, रिकॉर्डेड क्लास. You please watch it and please focus on answer writing. Please focus on answer writing. जी, आप आंसर राइटिंग पे जितना फोकस करेंगे उतने क्लोज आप अपने एग्जाम्स के पास चले जाएंगे. दैट इज मेंस. प्लीज, this is what I request in this class. So I'm stopping my class. आपको कोई भी क्वेरीज होगी आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम उसको नेक्स्ट क्लास में कैटेगराइज करेंगे. ओके देन, बाय बाय.